اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دیکھیے کل جو اسرائیلی کے آرمی چیف ہیں ایال زمیر صاحب، ان کا یہ بیان آیا ہے، انہوں نے اسرائیلی کیبنٹ میں یہ بولا ہے کہ اسرائیلی آرمی جو ہے بریکنگ پوائنٹ کے اوپر ہے، اور وہ خود اندر سے اتنا ٹوٹ چکی ہے کہ وہ کسی بھی وقت میں کولیپس کر سکتی ہے، اور 95 حملوں کے بعد ان کے تقریباً 100 سے زیادہ ٹینک، جو خبریں آ رہی ہیں انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، ان کے نہ بلکہ انہوں نے ٹینک تباہ کیے ہیں، بلکہ ان کی بیسز جو ان کی ری سپلائی کی اور ری فیولنگ کی اور ری لوڈنگ کی بیسز جو نارتھ اسرائیل کے اندر تھی، انہیں بھی سکسیسفلی حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے۔ تو جو آپ نے بات کہی یہ بات بڑی درست ہے، حزب اللہ نے ایک دن 95 اٹیک کیے، دوسرے دن 96 اٹیک کیے، اور اسرائیلی ملٹری کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے۔ پہلے کوئی 3 دن میں ختم ہو جائے گا، ایران بوٹ آن گراؤنڈ ہو جائے گا اور تھا وہ تختہ پلٹ ہونے والا، دنیا بھر کی باتیں، لیکن پہلے دن سے جنرل جاوید نے کہا کہ ہرگز یہ ممکن نہیں، یہاں امریکہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، بھاری نقصان ہوگا امریکہ کا۔ مجھے یاد ہے پہلے دن یہ بات کہی تھی جاوید اقبال صاحب نے، اور آج آپ دیکھیے کہ وہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ آج لوگ لکھنے مجبور ہیں کہ گھٹنوں پہ آ گیا امریکہ، کوئی کچھ بھی کہے۔ میں استقبال کرتا ہوں آپ کا، بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ حزب اللہ ایکٹیو ہو گیا، جاوید صاحب ادھر باب المندب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران اب دوسرا ہرمز بند کرنے جا رہا ہے، وہ بھی بند کر دے گا، اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ تو کل ملا کر کے کس طرح کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں میں اسے اپڈیٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا کیا آبزرویشن رہی اور کس طرح سے آج دیکھ رہے ہیں جاوید اقبال صاحب۔ جی السلام علیکم ممتاز بھائی، آپ کو اور آپ کے سبھی سننے والوں کو، اور جے ہند۔ دیکھیے پہلے تو جو جنگ چل رہی ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ بات کی لبنان کی، تو آج لبنان سے ہی اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ لبنان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے 1982 کے اندر انویژن کیا تھا لبنان کا، تب وہاں پہ فلسطینی یاسر عرفات جو پی ایل او تھی ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور انہوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ چند ہی دنوں میں انہیں کی جو گراؤنڈ فورسز تھی انہوں نے پورے بیروت کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد ان کی لبنان کی سرکار سے ڈیل ہوئی تھی، اور یاسر عرفات اپنے پی ایل او کے جتنے بھی ان کے لڑاکے تھے ان کے ساتھ بیروت سے نکال دیے گئے تھے، اور انہوں نے پھر ٹیونیشیا کے اندر اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی وہاں سے وڈرا نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایک لٹانی ریور پڑتی ہے جو کہ لبنان کے اندر پڑتی ہے، ساؤتھ لبنان میں، اور اسرائیلیوں کو لگتا تھا کہ یہ ان کا نیچرل فرنٹیئر ہے، اور وہ اسرائیل بارڈر سے جو لٹانی ریور ہے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور اس سارے علاقے کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ قائم رکھا تھا۔ حزب اللہ جب قیام میں آیا تو حزب اللہ نے 1983 کے اندر ایران کے آئی آر جی سی کی مدد سے انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا اور ملٹری پیٹرن پہ آرگنائز کر کے، تو جو اسرائیل یا اسرائیل کے سپورٹر امریکہ اور فرینچ فورسز تھیں ان کو انہوں نے اپنے حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا، اور وہ مسلسل مزاحمت اسرائیلی فوج کی کرتے رہے، اور 2000 میں تقریباً 18 سال کی مزاحمت کے بعد ساؤتھ لبنان سے انہوں نے مکمل طریقے سے اسرائیلی فوج کو مار بھگایا وہاں سے۔ 2000 جولائی میں اسرائیلی سینا ساؤتھ لبنان سے واپس آ گئی تھی، اور پھر اس علاقے کو بڑی اچھی طرح سے آرگنائز کیا تھا شیخ حسن نصر اللہ نے، اور 2006 میں جب جنگ شروع ہوئی تھی اس کے اندر بھی اسرائیل کا یہ ہدف تھا کہ ہم لٹانی ریور تک اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نیچرل بارڈر ہے۔ لیکن جس بہادری سے حزب اللہ نے وہ 2006 کی 34 دن کی جنگ لڑی
इसराइल वहां पे लिटानी रिवर की शक्ल भी नहीं देख पाया और उसे वहां से बुरी तरह शिकस्त खा के साउथ लबनान से वापस लौटना पड़ा था। अब इस जो ये हम इस देखें कि 28 दिसंबर से जब से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उनकी करेंसी क्राइसिस को लेके या फूड के प्राइसेस हाइक को लेके जो क्राइसिस हुआ था, उसमें नेतन्याहू ने और मोसाद ने अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया कि भाई देखिए अभी ईरानी रिपब्लिक जो है, जो रिजीम है इनकलाबी, इनकी ताकत काफी कमजोर हो गई है और अगर हम एक मैसिव स्ट्राइक करेंगे तो ये रिजीम जो है डिकैपिटेट हो जाएगा और जो पब्लिक है जो हमारे फेवर की है वो सत्ता में आ जाएगी। जब उन्होंने ऐसा किया तो नतीजा बिल्कुल उसके उलट आया और ये बातें हम आपसे बताते रहे थे कि देखिए ईरान ने अपनी ताकत बहुत मजबूत की है पिछले 20 सालों में। उन्होंने इजराइल और अमेरिका की हर जंग की हिकमत अमली को बड़े करीब से देखा है, लबनान में, सीरिया में, गजा में, और अपनी तैयारी उसके हिसाब से की है। और इसमें मैं एक चीज और आपसे बतला दूं कि जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं या जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, वो खुद अमेरिका और इजराइल से लड़ते रहे हैं लबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और यमन के अंदर। तो वो एक तरह से जो अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स या उनके ऑपरेशनल तरीके हैं, उनसे वो बखूबी वाकिफ हैं और उन्होंने अपनी सारी तैयारी उसके हिसाब से की थी कि अगर उनकी टॉप लीडरशिप डिकैपिटेट भी हो जाए, न्यूट्रलाइज भी हो जाए, तो चेन ऑफ कमांड ऐसी रहे कि जो वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है ऑपरेशनल या टेक्टिकल लेवल के ऊपर, उसमें किसी तरह का कोई फर्क ना आए। और पिछले 28 दिन की जंग में उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जंगी हिकमत अमली तैयार की थी, अमेरिका और इजराइल ने जो इन्होंने अपने असेसमेंट किए थे या जो अपनी प्लानिंग बनाई बनाई थी, अब ये लगता है कि उन्होंने बहुत सारे फैक्टर कंसिडर ही नहीं किए थे ईरान के, और उन्हें लगा कि ये बस ऐसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला में कर दिया था उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और ईरान ने भरपूर जवाब दिया है अमेरिका को और इजराइल को। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा है। और एक आपके सुनने वालों के लिए देखिए ये बता दें, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अंदर समुद्र को जब जंग होती तो दो तरह की चीजें कही जाती हैं, सी डिनायल और सी कंट्रोल। सी डिनायल वो होता है कि भाई आपने ऐसी माइंस लगा दी, उस जगह का इस्तेमाल दोनों फरीक नहीं कर सकते। लेकिन सी कंट्रोल वो होता है कि भाई मेरा पूरी तरह से एब्सोल्यूट कंट्रोल है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा लेकिन अपने दुश्मन को इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ईरान ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना सी कंट्रोल कायम रखा है और उसको मजीद मुस्तहकम किया है। अब अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे तो अपना दबदबा कायम रखा ही है, और जितनी अमेरिका की बेसिस थी इन आसपास के जो गल्फ जीसीसी के कंट्रीज हैं, उनको भी काफी हद तक उन्होंने एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज इसमें निकल के आया है वो है हिजबुल्लाह की फाइटिंग कैपेबिलिटीज। जो इजरायली फोर्सेस थी उनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि ये जो अमेरिका नवाज सरकार अभी लबनान के अंदर आई है, इस पे दबाव डाल के हिजबुल्लाह को डिमिलिटराइज करवाया जाए। और आपके चैनल पे हमने डिस्कशन में ये बतलाया था आपके सुनने वालों को कि ग्राउंड पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि लबनानी सरकार किसी भी सूरत के अंदर हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सकती है। और दूसरा हमने ये बताया था कि हिजबुल्लाह ने जो ये जंग लड़ी थी इजराइल के साथ, उसमें ये भी शेयर किया था कि कहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गैप आए थे जिसका फायदा उठा के इजराइल ने पेनेट्रेट करके उनके अंदर की जानकारियां हासिल करके उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया था। तो हमने डिस्कशन में ये बताया था कि वो अपनी उन कमियों को दूर कर रहे हैं और जो उनके हथियारों के जखीरे हैं वो उनको दोबारा से अपना फिर से रीसप्लाई उनकी हो रही, रीलोड वो उसको कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में वो अपनी
जब भी जंग होगी वो इसका मुजाहरा करेंगे। और हम अब ये देख रहे हैं कि उसमें जब इजराइल ने दोबारा अपनी फौज भेजी कि हम लिटानी रिवर तक के हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तो हिजबुल्लाह ने अपनी हिकमत अमली के तहत पहले उन्हें अंदर आने दिया, और जब वो काफी अंदर आ गए तो फिर एकदम से बहुत शदीद तरीके से उनके ऊपर ऐसी एम्बुशेस की, इतने सारे इलाकों में एम्बुशेस की कि एक ही दिन में उन्होंने 95 अटैक्स उनके ऊपर किए। और जिन अटैक्स के बदले में उनकी जो जितनी कमांड एंड कंट्रोल था लेबनान के अंदर, वो सारा उन्होंने तितर बितर कर दिया। और 95 हमलों के बाद उनके तकरीबन 100 से ज्यादा टैंक, जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने तबाह कर दिए हैं। उनके न बल्कि उन्होंने टैंक तबाह किए हैं, बल्कि उनकी बेसिस, जो उनकी रीसप्लाई की और रिफ्यूलिंग की और रीलोडिंग की बेसिस जो नॉर्थ इजराइल के अंदर थी, उन्हें भी सक्सेसफुली हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। और मैं एक खबर ये भी पढ़ रहा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो हिजबुल्लाह की फौजें हैं वो खुद नॉर्दर्न इजराइल के अंदर दाखिल हो गई हैं। कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ लबनान के अंदर ही वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा बहुत मुमकिन है कि उनकी कुछ टुकड़ियां नॉर्दर्न इजराइल के अंदर दाखिल होके जो उनकी मिलिट्री बेसेस हैं रीसप्लाई की इस इन्वेडिंग आर्मी के लिए, उनको उन्होंने अपने हमलों का निशाना बनाया है। और इसी का नतीजा है कि देखिए कल जो इजरायली के आर्मी चीफ हैं अयाल जमीर साहब, उनका ये बयान आया है, उन्होंने इजरायली कैबिनेट में ये बोला है कि इजरायली आर्मी जो है ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर है और वो खुद अंदर से इतना टूट चुकी है कि वो किसी भी वक्त में कोलैप्स कर सकती है। अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 2.5 साल से इजरायली मिलिट्री जो है वो मुसलसल जंग के अंदर है। और गजा के अंदर भी हमने देखा था कि कैसे उनके रिजर्विस्ट, उनकी एक बड़ी तादाद जब उन्हें बुलाया जा रहा था वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि जब इजरायली अवाम का भी उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर से एतमाद में कमी आई है और 1/4 लोग इजराइल छोड़ के भागने के चक्कर में है, वही एस्पेक्ट उनकी मिलिट्री में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो उनकी मिलिट्री है अब वो बुलाना चाह रहे हैं रिजर्विस्ट को, कॉल अप कर रहे हैं, लेकिन लोग वहां पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी मिलिट्री की भी बहुत बुरी हालत है कंटिन्यूअस वारफेयर की वजह से। तो फिलहाल इजराइल के लिए क्योंकि वहां पे मिलिट्री सेंसरशिप है और वो किसी भी तरह की खबर को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन जब उनके आप न्यूज़पेपर या उनकी प्रेस को पढ़ें, उनके पास आज के टाइम पे कोई भी ऐसी खबर अपनी मीडिया को देने के लिए नहीं है, ना ही ईरान से ना ही लबनान से, कि वो किसी भी फ्रंट पे किसी भी तरह से अपने दुश्मन के ऊपर किसी भी तरह की कोई बढ़तरी हासिल कर रहे हैं या करने की पोजीशन में है। ये उनकी प्रेस को देख के ही इस बात का अंदाजा लग जाता है। तो जो आपने बात कही ये बात बड़ी दुरुस्त है। हिजबुल्लाह ने एक दिन 95 अटैक किए, दूसरे दिन 96 अटैक किए और इजरायली मिलिट्री को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं वो किसी भी तरह से। तो फिलहाल जो जंग है वो इस सिचुएशन में है। और जहां तक बातचीत की बात है तो अमेरिका की तरफ से ही ये बातचीत की बातें और कोशिशें चल रही है। जहां तक ईरान का सवाल है तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची साहब, जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, 15 पॉइंट ट्रंप की तरफ से आए थे और 5 पॉइंट ईरान की तरफ से आए हैं, उनमें एक बड़ा फर्क ये है कि ईरान ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है अमेरिका को कि देखिए पहले तो अगर जंग बंदी होगी तो कंप्रहेंसिव होगी, और ये जो आप बीच बीच में जंगी हमले शुरू कर देते हैं ये सारे बंद होंगे। और जो लेकिन इससे भी बड़ा जो एक बड़ी शर्त उन्होंने अमेरिका के साथ रखी है वो ये रखी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अमेरिका तस्लीम करे कि ये ईरान के पूरी तरह से कंट्रोल में है। और ये शर्त अमेरिका के लिए किसी भी तरह से काबिल कबूल मेरी नज़र में नहीं होगी। तो देखते हैं कि जो बातचीत का सिलसिला है वो क्या आगे बढ़ता है, अगर आगे बढ़ता है तो किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन जहां तक मैदान जंग का सवाल है, ईरान बड़ी मजबूती के साथ और हिजबुल्लाह भी बड़ी मजबूती के साथ
اپنے اپنے مخالفوں کے اوپر بہترین پریشر بنائے ہوئے. جی ممتاز.